ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेसिकली अपन जो एफटीपी का प्रैक्टिकल सेशन है ना, रिलेटेड टू कि हाउ द रिक्वेस्ट इज सेंड फ्रॉम द क्लाइंट, हाउ द स्पेसिफिक फाइल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम एफटीपी सर्वर। तो ये हम इसका सिमुलेशन पहले तो पैकेट ट्रेसर में देखेंगे, उसके बाद फिर अपन रियल जो हमारे एफटीपी जो फ्रीवेयर्स अवेलेबल हैं, एफटीपी सर्वर्स, उसके थ्रू देखेंगे। ओके, ओके, पहले हम एफटीपी सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज द GUI ऑफ पैकेट ट्रेसर। आई एम सेलेक्टिंग द nodes to connect from FTP server as a client. Okay. Selecting one node, okay, connecting to a specific switch. Then use a server. See, I am selecting a server to create the FTP server. Clear? Connect these nodes. Okay. I am connecting these nodes. See on the screen. Now I am allocating the IP address to the machine. Okay. Now I am allocating the IP address to the machine. मैं आपको वापस शेयर कर दूँ स्क्रीन। Okay. See, now allocating the IP to the machine. Okay, you know very well how to allocate the static IP address. IP address, subnet mask, default gateway. Okay, allocate the IP address to one machine, then also same process is done with the second machine. Now giving the IP address to the next machine, it automatically getting the subnet mask. Remember the default gateway, which is same for every machine in the network. Okay, now I am allocating the IP to the server machine. Okay, the IP address is 4. Remember the IP address of the server machine. Okay, now you are assigning the uh, server as a FTP service.
So we can click the FTP service. See, there are number of protocols like HTTP, DHCP, TFTP, DNS. List of services are available. So you can enable any type of service, whatever you want. First of all, here we are enabling the FTP service. Clear? ठीक है, ये FTP सर्विस हमने इनेबल करी. तो FTP जैसे मैंने इनेबल करा है ना, यहाँ देखो FTP ऑन होना चाहिए. इफ इट इज ऑफ, okay, so you should on this FTP service. Here, see this window. Here the defined user is given like Cisco. That is the sample username and password. Cisco password is also Cisco. Okay, and the permission allowed to this user is read, write, delete, rename and list. All the permissions are given to the specific user. Okay, you can also create the new user. For example, I am creating the new user like CSA. Okay, the username is CSA and the password is also CSA. Clear? So I am adding this user as a new user and allow these permission to that particular user. Okay, read, write, delete, rename and list. Clear? So I am adding this user. See, this user is added into the list. If you want to remove any type of user, you can remove the user also. Clear? So if I want to remove this Cisco user, I can remove this user also. Okay, if I am removing this, we can click on that particular minus, so we can remove this user. This is the sample scenario. Okay, it is a simulation of file transfer protocol on Cisco packet tracer. Clear? Okay, now I am closing this. Now the FTP service is enabled on that particular server. Okay, this is the FTP server. These are the two clients which are connected to this FTP server with the help of switch. Okay, now I am accessing this computer. Okay, with the help of command prompt, virtual command prompt. Clicking on the command prompt, I am on the uh, terminal or the prompt of computer, that is PC prompt. Clear? Now enter the FTP IP address or log in to the FTP server. Okay, for this we are using the command FTP space and the IP address of FTP. What is the IP address of this FTP server? That is 172.16.10.4. Okay, whenever I am writing the command like FTP space and the IP address of the FTP machine, okay, you are accessing the FTP server. What is the response? You are writing the command like FTP and IP, so it gives the response like connect to this FTP server, welcome to the PT FTP server, that means packet tracer FTP server. So what is the code here? That is 220. Okay, service is ready or positive reply. Okay, so remember these type of codes. Okay, 200, 211. So please refer these codes whenever I am writing any command. See that particular code. Now it is asking for username. If you want to remote login to that particular FTP server, you have a specific username and password. Okay, the username is CSA. The username is CSA. Okay.
Hope you all are getting. Now, it gives the response like username okay, need password. So this 3 series code gives that 3 series response gives that it is a positive intermediate reply. That means password is correct, sorry, username is correct, then enter the password. So the password is also CSA, entering the password. So what is the response from the FTP server? That is passive mode on. Logged into the FTP server and the passive mode on. Remember that particular scenario of FTP server. See, the server is available on the passive mode. Passive mode. Okay, it is available in the passive mode. See, this server is available on passive open mode. Okay, so this shows this scenario. See, okay, now we are on the FTP prompt. Clear? So earlier we are on the PC prompt or command prompt of PC. Then we are logged into the FTP server. Okay. See, now I am using some commands like we are accessing the list or directory of a FTP server. So this is the list of files having the FTP server. Okay, we are not on the computer now. We are on the FTP server. Remote login on the FTP server. Clear. So with the help of this FTP server, now we can access some command like we can specifically download some file from the FTP server to the computer. Okay, that computer is PC0. See that I'm showing like we are accessing some another computer. Okay, see, I'm accessing the other computer. Okay, the command, open the command prompt of the next computer. Okay, now if we are opening the command prompt of next computer, if I am writing the command like directory dir, see, there is one sample file. Clear? That is sample file.txt. If any user wants to upload this type of file to the FTP server, so he or she can upload the file on the FTP server if this user has rights to upload the data. Okay, I am closing this. Okay, so आई एम राइटिंग द कमांड लाइक ये जो कंप्यूटर है आपका PC0, इस पे भी वो सैंपल फाइल अवेलेबल है. ओके, तो अगर मैं ये सैंपल फाइल इस कंप्यूटर की FTP सर्वर पे अपलोड करना चाह रही हूँ, तो आई एम राइटिंग द कमांड लाइक पुट. ओके, वी आर अपलोडिंग द फाइल from FTP client to the FTP server. We are using the command like put space and that particular file name. So what is the file name? That is the sample file.txt. I am writing the name of the sample file.txt. Okay, put space and the name of the file which you want to upload on the FTP server, because I am giving the right of read, write, rename, list and delete to this specific user. That's why I am writing or putting the file to the FTP server or uploading the file to the FTP server. Here, see, file transfer is in progress. दिस पर्टिकुलर बाइट्स कॉपीड. ओके, तो ये फाइल आपकी अब FTP पे अपलोड हो गई है. अगर आपको चेक करना है तो यू आर राइटिंग दी कमांड लाइक डायरेक्टरी dir. You can see the file here, sample file.txt. Earlier it is not available on that particular FTP server. We can see this with the help of command like dir, what type of file or which files are available on FTP server. Okay,
Now I am copying the file from the FTP server. So for this we are using the command get. Okay, get space, and these are the files available on the FTP server. I am copying one of the file name. I am copying from the list. See, get this file name which is available on the FTP server. File transfer is in progress. Okay, wait, the file is copying from FTP server to FTP client, which is PC0. I hope this file is large file, so that's why it is taking time. Okay. बेटा अगर कुछ डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो रेज हैंड करके. ओके, कॉपी हो रही है फाइल अभी PC0 पे. ओके, सो ये फाइल्स आपकी कॉपी हो जाएगी. अगर आपको किसी फाइल को रीनेम भी करना है तो आप रीनेम भी कर सकते हो. ओके ओके, द फाइल इज कॉपीड. सी, द फाइल इज कॉपीड. सी, है ना, ट्रांसफर कंप्लीट. अगर आपको ये फाइल चेक करना है तो आप PC0 पे जाके चेक कर सकते हैं. ओके, अगर मुझे किसी फाइल को रीनेम करना है, फॉर एग्जांपल जो सैम्पल फाइल डॉट txt मैंने अपलोड करी थी उसी को मुझे रीनेम करना है, क्योंकि मेरे पास राइट्स है रीनेम के. डिलीट, रीनेम, लिस्ट आउट, इन सब के राइट्स हैं मेरे यूजर के पास. सो आई एम रीनेमिंग दिस पर्टिकुलर फाइल. सो फॉर दिस वी आर यूजिंग द कमांड रीनेम. Rename space and that file name. File name is sampleFile.txt. So first of all we are writing the old file name, then the new file name. Okay, the old file name is sampleFile.txt. Then after space you enter the new file name. For example, I am writing the abc.txt. Okay, we are using the command rename sampleFile.txt space, that is new file name abc.txt. Clear? The file is renamed. Check this, that particular updation is made in the directory. See, the sample file.txt is now renamed with the abc.txt. Clear? Okay, so if you want to delete the file, you are use the command delete space file name. I am deleting the file abc.txt. Delete abc.txt. Okay, check again the directory list. Now this file is not available in the list because I removed this. Okay, so the purpose of this practical is like how the FTP server works, or how the FTP client is accessing the FTP server. Okay, with the help of commands, and the FTP server is allowing the user some specific operations like update, delete, rename. Okay, and uploading the file. So you are providing some permission to the user whenever you are creating the user, different users. Okay, so you create different users and allow the permission which you want to do the user. Clear? Okay, now I am closing this window. अब मैं आपको बेसिकली जो डिफरेंट हमारे ओपन सोर्स अवेलेबल हैं FTP सर्वर उसे बताऊंगी. ठीक है, मैं क्लोज कर रही हूँ ये प्रैक्टिकल आपका
एंड हो गया ये एफटीपी। इसी सिमिलर कमांड को जो हमने यहाँ सिमुलेट करके देखा एफटीपी का, ये कैसे एफटीपी क्लाइंट एफटीपी सर्वर पे लॉगिन करता है, कैसे पैसिव मोड में ऑन रहता है, कनेक्शन कैसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और कैसे फाइल अपलोड और डाउनलोड वो कर सकता है। तो अब इसी को अपन दूसरा जो हमारे पास अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे फाइल जिला है आपका, है ना, सूजे.com वेबसाइट है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड ऑफ करके मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। देखो अभी अपन ने एफटीपी क्लाइंट एक्सेस करा था कमांड प्रॉम्प्ट से, जिसको पैकेट ट्रेसर में जो हमारा एक सिमुलेशन था। ठीक है, ऐसा ही ये हमारा रियल एफटीपी क्लाइंट है, जिसको अपन फाइल जिला बोल रहे हैं, है ना, ये फाइल जिला आपका रियल एफटीपी क्लाइंट है। तो यहाँ होस्ट में हमें क्या देना है, जो उस सर्वर का आईपी देना है। ठीक है, जहाँ से हमें फाइल जो है वो डाउनलोड करना है। तो ये एक हमने स्पेसिफिक ओपन करके रखा है, एक आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करके रखा है। दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इज ऑफ suze.com, दैट इज फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री एफटीपी सर्वर। ओके, यहाँ मैंने होस्ट नेम में आईपी एड्रेस डाला है। ठीक है, आप ये आईपी चेक कर सकते हो बेटा, है ना, पिंग करके आप आईपी चेक कर लो, या एनएस लुकअप करके आप चेक कर लो। suze.com का आईपी है ftp.suze.com। ठीक है, और ये अनोनिमस है, तो यूजर नेम नहीं डालेंगे इसके अंदर, हम डायरेक्टली इसको क्विक कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी, जैसे हमने क्विक कनेक्ट किया, यहाँ पे आपका इसका डायरेक्टरी आ गया। ठीक है, पीयूबी डायरेक्टरी ये यूज कर रहा है। यहाँ देखो, कनेक्टिंग टू दिस, क्या आपका रिस्पॉन्स आया, कनेक्टिंग टू दिस आईपी, कनेक्शन एस्टेब्लिश, वेटिंग फॉर वेलकम मैसेज। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव कंप्लीशन रिप्लाईज हैं, आइदर इट इज इंटरमीडिएट और कंप्लीट कंप्लीशन रिप्लाई। ठीक है, it shows the status of the server like it is insecure server, it does not support ftp over tls। ठीक है, लॉग्ड इन, सर्वर में आपने लॉग्ड इन किया, डायरेक्टरी लिस्टिंग शो कर रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिस्ट देख सकते हो आप, सीधे लिस्ट ऑफ दीज फाइल्स। क्लियर, नाउ सी, इट इज द लोकल मशीन, जो कि आपकी क्लाइंट मशीन है। ठीक है, ये मेरी क्लाइंट मशीन है। ओके, और ये हमारा क्या है, एफटीपी सर्वर है। क्लियर, अब जो भी फाइल आपको डाउनलोड करनी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जो हमारी इस पर्टिकुलर मशीन में कॉपी हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे यहाँ readme.txt है, तो इस readme.txt को हम अगर डाउनलोड करते हैं, GUI बेस्ड है ये आपका पूरा, तो यू आर यूजिंग दी interface to download the file. See the status of the function, like start downloading from this directory. The name of the file is readme.txt and the file transfer is successful. So you are downloading the file from the suze.com FTP server. Clear? ये जो आईपी लिखा है आपका 195.135.221.132, that is the IP address of that particular free FTP server suze.com। अब ये फाइल आपकी यहाँ, ये हमारा, जैसे ये या फाइल यहाँ है आपकी एफटीपी सर्वर पे, जो अभी हमने हमारे लोकल मशीन पे डाउनलोड कर दी।
see the time, that is 11:59, clear, and the date is 7. So this file is downloaded from FTP server to FTP client, clear. That is GUI based. Okay. सो अपलोड करने की परमिशन नहीं है, रीनेम करने की परमिशन नहीं है हमारे पास एफटीपी क्लाइंट पे, तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको जो सिस्को पैकेट ट्रेसर का जो सिमुलेशन था एफटीपी सर्वर का, वहाँ मैंने बताया कि क्या क्या हम एफटीपी सर्वर से हम क्या क्या परमिशन ले सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो ये फ्री जो हमारे एफटीपी सर्वर से, उससे आप इस तरह से फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ओके। मतलब हम एचटीटीपी भी यूज करते हैं, हम एफटीपी भी यूज करते हैं, बट इन सब के जो हमारे प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर हैं, जो हमारे हेडर्स हैं, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम एफटीपी यूज करते हैं या फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या हम जो हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए फिर हम एचटीटीपी भी यूज करते हैं, ठीक है। बट इट इज डिफरेंट इफ वी आर एक्सेसिंग एनी टाइप ऑफ service like FTP colon double slash and the IP address or the URL of FTP. So we are accessing the FTP server, okay. बट अगर आप HTTP कॉलन डबल स्लैश से कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर FTP से फाइल डाउनलोड हो रही है, तो वो भी आपका जो फंक्शन है वो आपका सेम है कि फाइल ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, बट जो उसका स्ट्रक्चर है वो अलग है, ठीक है। अब इसी को अपन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये क्लाइंट मशीन है आपकी, इसको मैं क्लोज कर रही हूँ। नाउ आई एम शेयरिंग द कमांड प्रॉम्प्ट। फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, ठीक है। डिस्प्ले क्लियर होगा आपका मुझे लगता है। अब मैं यहाँ पे जो मेरा आईपी है, जैसे ये मेरा आईपी था, मैं इस आईपी को यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी मैंने GUI पे जो आईपी दिया था आपको, वही आईपी मैं यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। कमांड क्या है आपकी, FTP स्पेस और वो आईपी एड्रेस उस FTP सर्वर का। अब मैं एंटर करती हूँ तो ये मेरा कनेक्ट हो गया उस FTP सर्वर से। जो मैंने GUI से भी किया था होस्ट में आईपी एड्रेस डाल के, ठीक है, और अनोनिमस आपका जो यूजर था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी क्योंकि यूजर आपका अनोनिमस है, तो ये यूजर आपका जो अनोनिमस था, इसलिए मैंने वहां पे नेम लिखा अनोनिमस, क्लियर। पासवर्ड आपका कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। मैं एंटर करती हूँ विदाउट एंटरिंग पासवर्ड, ठीक है। नाउ यू आर ऑन दी एफटीपी प्रॉम्प्ट। अभी हम कहाँ थे, अभी हम थे एफटीपी से पहले हमारे टर्मिनल पे सी सी कॉलन पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ चेंज कर दिया, एफटीपी प्रॉम्प्ट पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी डायरेक्टरी, ठीक है, ये लिस्ट है पूरी, ठीक है। ये जो फाइल्स अभी हम वहाँ देख रहे थे फाइल जिला पे, जब हमने उसका जो आईपी एड्रेस डाला था, ठीक है, ये जो आईपी हमने वहाँ होस्ट में जो डाला था, उसके बाद हमने जो डायरेक्टरी चेक करी थी, तो हमारे पास कुछ फाइल नेम्स थे, ठीक है। ये हमारी डायरेक्टरी है, ठीक है, पीयूबी जो हमारे जीयूआई में भी थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पाथ चेंज कर रही हूँ, चेंज डायरेक्टरी। आप देख लो अभी करंट डायरेक्टरी कहाँ पे हो आप, ठीक है। नाउ सी क्या आया यहाँ पे रिस्पॉन्स, 200
पोर्ट कमांड सक्सेसफुल, ओके, कंसिडर यूजिंग PASV। सो जब भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, ऊपर यहाँ पे हमने जब रिक्वेस्ट करी थी FTP स्पेस और IP एड्रेस से, तो हमारा FTP सर्वर का कंट्रोल कनेक्शन FTP जो FTP क्लाइंट के साथ हो गया, ठीक है। उसके बाद अब FTP जो हमारा, ये यहाँ देखो, ये मैं आपको PPT फिर से दिखा रही हूँ कि ये जो आपका ट्रांसमिशन था, सी, यहाँ पे अब उसे अपना एक इफेमेरल पोर्ट नंबर सेंड करना पड़ेगा डायनामिक कैटेगरी का FTP क्लाइंट को कि कहाँ पे ये फाइल रिसीव करेगा। तो ये तो पोर्ट कमांड के थ्रू कर सकता है, ठीक है, या फिर सर्वर खुद सेलेक्ट करे पैसिव कमांड के थ्रू, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ करी। जैसे आपने पाथ चेंज किया, अपना करंट डायरेक्टरी स्टेटस चेक किया, तो इसने ऑटोमेटिकली डायनामिक अपना डायनामिक कैटेगरी का पोर्ट नंबर ले लिया, कंसिडरिंग यूजिंग PASV कमांड फॉर एक्सेसिंग दी डायनामिक पोर्ट नंबर फॉर दी क्लाइंट मशीन, ओके, डेटा ट्रांसफर क्लाइंट के लिए। तो ये सारी हमारी फाइल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉपी करूँ फाइल को, सी, आप ये क्वेश्चन मार्क से देख सकते हैं कि क्या क्या कमांड्स आप रन कर सकते हो करंटली, ठीक है। करंटली कौन से कमांड्स आप रन कर सकते हो दिख रहा है। सी, यहाँ पे जो पासवर्ड PASV कमांड या पोर्ट कमांड है वो नहीं दिया है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, यहाँ पे वो जो उसने डायनामिक कैटेगरी का पोर्ट नंबर है वो डिफाइन कर दिया है, ठीक है। मैं वापस प्रॉम्प्ट पे आ रही हूँ। ये सारी लिस्ट है, आप देखो, ये पूरी लिस्ट है फाइल्स की जो इस पर्टिकुलर मशीन में है SUSE.com पे। और ये कमांड है जो आप रन कर सकते हो, ये वही कमांड है, लाइक रिसीव है, क्विट है ना, PWD अभी अपन ने चेक किया, ठीक है। रीनेम कर सकते हैं अगर FTP सर्वर ने या यूजर को परमिशन दी है रीनेम करने की, डिलीट करने की, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ओपन कमांड यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा FTP और एंटर मारा, तो वी आर एंटरिंग ऑन दी FTP प्रॉम्प्ट, बट वी आर नॉट ऑन दी स्पेसिफिक FTP सर्वर, so we are using the command open space and that particular IP address, clear। now I am using the command get, ठीक है, to get the file on my machine, readme.mirror hyphen policy, या हम readme.txt करते हैं वापस, वो उसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे आएगी जिस समय आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा get space readme.txt, okay, now check the directory, okay, this is available on the FTP. Now I am checking the my machine, okay, I am writing the quit to exit this particular mode, so that is 221 goodbye. I am normally terminate the FTP connection, okay. I am on my machine, client machine, see the prompt, c:/user/, okay. Now I am writing dir, see the file, that is 12/7, okay, अभी मैंने करी है, ठीक है। और ये वाली फाइल आपकी इतने बाइट की readme.txt जो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से करी, ठीक है। तो इसका बताने का पर्पस क्या है बेसिकली आपका, या तो आप GUI बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जैसे हमने फाइलजिला यूज करा, जिसमें आप डिफरेंट जो मेरे FTP या ओपन FTP सर्वर्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो, उनका IP देख के। अगर मुझे यूजर नेम, सॉरी, मुझे अगर डोमेन नेम पता है, लाइक जो SUSE.com है उसका जो पूरा डोमेन नेम है वो क्या है आपका, ftp.suse.com, ठीक है। उससे मैंने IP निकाला और उस IP को मैंने अब यहाँ यूज करा एज अ IP एड्रेस, एज अ होस्ट IP एड्रेस, जो मेरा FTP सर्वर का IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी। तो इस तरह से ये FTP जो आपका प्रोटोकॉल है वो वर्क करता है, ठीक है, FTP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया कि पहले हमने जो पैकेट ट्रेसर था उस पर सिमुलेट किया, ठीक है। वही सारी कमांड हम सिमुलेशन पे करी थी और वही हम यहाँ भी करके देख रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि जो आपको परमिशन FTP सर्वर से मिली हुई है, वही सारी परमिशन
अगर वही सारी परमिशन मुझे अगर एग्जिस्टिंग ओपन एफटीपी सर्वर्स भी देते हैं तो हम ये जो दूसरे रीनेम है, डिलीट है, आप लिस्ट है, ये सारी आप कमांड रन करके देख सकते हो। बट यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ परमिशन क्या है, रीड करने की। तो हमने किसी भी पर्टिकुलर फाइल नेम को डायरेक्टरी से चेक किया और उसको हमने डाउनलोड किया। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग ओवर होने वाली है। तो ये आपका जो टॉपिक है एफटीपी से रिलेटेड वो आपका फिनिश हो चुका है। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हमने देख लिया। ठीक है, अब आपके इस 5th यूनिट में 2 ही टॉपिक हैं। दैट इज एक डीएनएस है, डोमेन नेम सिस्टम्स, और एक है आपका एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ अपन क्लास फिनिश करते हैं। ये प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, अगर पैकेट ट्रेसर आपने इंस्टॉल किया है तो ये हो जाएगा। ये आईपीज आप